रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में सबके लिए आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट, गौरव सर। ओके सर। तो एग्री 82 एक नॉन आयनिक हाई कंसंट्रेटेड लिक्विड है। तो जैसे एग्री 82 के এগ্রি 82 বলার আগে আমি এটাই বলবো যে যেমন আমরা যেমন যখন হচ্ছে টায়ার্ড হয়ে পড়ি বা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সেরকম আমাদের যে বিভিন্ন কাজ থাকে তাহলে সেটার জন্য আমরা চা বা কফি খেয়ে একটা হাই এনার্জি ফিল করি, ঠিক আছে। এগ্রি 82 কাজটা ঠিক সেরকমই। এগ্রি 82 অ্যাকচুয়ালি সার বা যদি সার, কীটনাশক, পেস্টিসাইড আর এমনি ফাঙ্গিসাইডের সাথে ইউজ করা হয় তাহলে এটা তার কার্যকর ক্ষমতাকে 10 গুণ বাড়িয়ে তোলে। তো সেই 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 জন্য আর যখন বাড়িয়ে তোলে তখন যে সার সার যে পরিমাণে আমরা ইউজ করি, ধরে নিন যে 1 একর জমিতে আমরা 10 কেজি সার ইউজ করি, তাহলে ওই এগ্রি 82 মেশানোর ফলে সেই 10 কেজি সার না ইউজ না করে সেটা আমরা 6 কেজি করতে পারি। কিন্তু এগ্রি 82 ইউজ করার ফলে সেটার ক্ষমতা 10 কেজি সারের মতোই হবে। এবং হচ্ছে একটা 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 উদ্ভিদকে বাঁচার জন্য 3টে মেইন জিনিস দরকার, যেমন হচ্ছে লাইট, আর হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে ওয়াটার, আর থার্ড হচ্ছে যে যে ওদের যে খাবার, যেমন নিউট্রিয়েন্টস আর পেস্টিসাইড এসব থাকে। তো এগ্রি 82 কাজ মেইনলি হচ্ছে ওয়াটারের সাথে হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস এর সাথে পেস্টিসাইডের সাথে যুক্ত আছে। তো ওয়াটারের সাথে যদি আমরা এগ্রি 82 ইউজ করি তো হচ্ছে যদি কোনো একটা জমিতে যদি মাসে 3 বার বা 4 বার জল দেওয়ার দরকার হয়ে থাকে, তো এগ্রি 82 জলের সাথে ইউজ করলে সেই জমিটা বেশিক্ষণ সময়ের জন্য জল হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়। সো সব মাসে যদি 3 বার করে জল দিই, সেক্ষেত্রে আমরা 2 বার জল দিয়ে তার নিজের টাকা আর সময় বাঁচাতে পারি। আর হচ্ছে এগ্রি 82 একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যে যদি আমরা পেস্টিসাইড বা হচ্ছে ফাঙ্গিসাইডের সাথে ইউজ করি, তো অনেক সময় হয় যখন নর্মালি ইউজ করি সেটাকে স্প্রে করার সময় গাছের পাতাতে কোনো গাছে বেশি স্প্রে হয়ে যায় বা কম স্প্রে হয়ে যায়। তো সেই পাতাতে ঠিকঠাক ওষুধটা লেগে থাকতে পারে না বা গাছটার উপর ওষুধটা ঠিকঠাক লেগে থাকতে পারে না, সেটা পড়ে যায়। কিন্তু এগ্রি 82 ইউজ করার ফলে সেই ওষুধটা বা ফাঙ্গিসাইড, পেস্টিসাইড যা আপনি ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে পাতার সাথে ঠিকঠাক লেগে থাকতে পারবে। এতে আপনার নেক্সট টাইম অনেকদিন পরে গিয়ে আপনি যদি পেস্টিসাইড ইউজ করেন তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি না ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে বৃষ্টি হলে বা সেটা বাজার থেকে ধুয়ে গিয়ে আপনাকে আবার নেক্সট পরে আবার স্প্রে করতে হতো, তাতে এতে আপনার খরচা বাড়তে পারে। আর হচ্ছে এইটুকুই ছিল, এইটুকুই ইয়ে করতে পেরেছি। আর হ্যাঁ, এগ্রি 82 হচ্ছে আহ, জলের সাথে যদি 30 লিটার জলের সাথে ইউজ করা হয় তাহলে হচ্ছে সেখানে 20 থেকে 25 ml ইউজ করতে পারি আমরা 30 লিটার জলে। আর হচ্ছে যদি কোনো সারের সাথে এনপিকে, ডি তারপর হচ্ছে সুপার ফসফেট এসবের সাথে যদি ইউজ করি তাহলে হচ্ছে প্রতি কেজি হিসাবে 5 থেকে 7 ml করে ইউজ করতে পারি সেটা। ওকে, দ্যাট ইজ অল। সো বেসিক্যালি এগ্রি 82 হচ্ছে কি একটা বৃদ্ধি বাড়ানোর একটা প্রোডাক্ট। আলটিমেটলি প্ল্যান্টের গ্রোথের উপর এটা বেশি ফোকাস করে, তাই তো? ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গৌরব স্যার, ইট ওয়াজ নাইস। Let's move on to the next product. I can see Agri Humic, and that will be done by Rituraj sir. So Rituraj sir, ready? सर एक प्रोडक्ट आप कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ये फोन का सेटिंग कर रहा हूँ बिकॉज आवाज जो है क्रैक हो जा रहा है लैपटॉप से, तो मैं फोन से बोलूंगा। एक प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर आई विल डू यूमिक। ओके ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट के तरफ से चलते हैं। एग्री गोल्ड। सो गोल्ड किसका था? दीपाक्षी मैम का था शायद। यस, दीपाक्षी मैम, रेडी? Sir, Okay, then let's start. Good morning everyone. So আমি এখন বলতে চলেছি এগ্রি গোল্ড এর ব্যাপারে। এগ্রি গোল্ড হলো একটা প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর, মানে অথবা এটাকে এরকম ভাবেও বলা যেতে পারে যে ইমিউনিটি বুস্টার।
এবার ইমিউনিটি বুস্টারের কি কাজ না কাজ সেটা এই 2 বছরে কোভিড এর থ্রু আমরা সবাই খুব ভালো মতোই জানি। সো ইমিউনিটি বুস্টার তো আমাদের ওয়েস্টিজে আমাদের জন্য হিউম্যানসদের জন্য ইমিউনিটি বুস্টিং হিসাবে সিবাকথর্ন আছে, যেরকম স্পিরুলিনা আছে, সেরকমই আমাদের গাছলা বা ফসলের জন্য আছে এগ্রি গোল্ড। তো এগ্রি গোল্ডটা বেসিক্যালি গাছের ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করে, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মানে আমাদের যদি নর্মালি যদি ফসলে প্রচুর পরিমাণে কীট লাগে, তো বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাস এর উপদ্রব হয়, যাতে ফসলের কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি দুটোই খুবই কমে যায়। তো সেটাকে এটা রোধ করে, মানে সেটা কোনোদিনই সম্ভব নয়, হবে না যদি এগ্রি গোল্ড ইউজ করা যায়। আর তারপরে এর ফলন ভালো হয়, খুব তাড়াতাড়ি ফলকে পাকতে কাজ করে, মানে পাকার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে অ্যাকচুয়ালি। এছাড়া এটা আরো যেটা একটা খুব ভালো কাজ করে, সেটা আমাদের বিভিন্ন ধরনের শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়াম বলে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে। সেই ব্যাকটেরিয়াটা যেটা হেল্প করে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন, আমাদের 78% বায়ুতে নাইট্রোজেন থাকে, তো সেই নাইট্রোজেনটা নিয়ে আসতে, মানে মাটিতে আনতে খুব হেল্প করে থাকে। আর এগ্রি গোল্ড ইউজ করলে এটার পরিমাণ, মানে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণটা বৃদ্ধি করার একটা খুব ভালো চান্স থাকে, যেটা বিভিন্ন কাজে গাছের নিজের খাবার তৈরি করতে খুব দরকার, মানে খুবই প্রয়োজন। এছাড়া আরো যেরকম এগ্রিগোল্ড খুব বেশি ইউজ করতে হয় না, এক ফসলীয় যে ফসলগুলো হয়, মানে যেই ফসলগুলো একবার করে ফসল দেয়, মানে ধান হয়ে গেল, গম হয়ে গেল, সর্ষে হয়ে গেল, ইভেন কলা, এই ধরনের ফসলে আমরা এগ্রিগোল্ড একবার করে ইউজ করলে পারেই সেটা কাজ করবে। মানে গাছ তৈরি হওয়ার, মানে গাছ জন্মানোর 30 থেকে 40 দিন পর আমরা একবার ইউজ করবো, বাস দ্যাটস অল। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ফল হওয়ার বা ফুল হওয়ার 30 থেকে 35 দিন আগে আমরা এগ্রিগোল্ডকে ইউজ করব। আর এগ্রিগোল্ডকে ইউজ করব কিভাবে, যে 1 থেকে 2 গ্রাম পার লিটার জলে আমরা মিশিয়ে এগ্রিগোল্ডকে ইউজ করব, অথবা জলের থ্রু স্প্রে করা ছাড়াও এগ্রিগোল্ডকে মাটির সাথে মিশিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি। মানে কখনো কোনো গাছপালা লাগানোর আগে আমরা যখন মাটিটাকে প্রসেস করি, সেই সময়ও এগ্রি গোল্ড ইউজ করা যায়। তখন কি করে করতে হবে, 100 থেকে 200 গ্রাম পার একর জমি বা পার বিঘায় 100 থেকে 200 গ্রাম এগ্রিগোল্ড ইউজ করতে হবে। আর অবশ্যই এগ্রিগোল্ড সমস্ত ধরনের সবজি থেকে, তারপরে শস্য থেকে, ফুল ফল বিভিন্ন সমস্ত ধরনের গাছে আমরা এগ্রিগোল্ড ইউজ করতে পারি, এখানে কোনো বাধা নেই। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট এগ্রিগোল্ড। Super, fantastic. Thank you, sir. So we are done with Agri 82 and Agri Gold. सच में सोना ही है, right? Okay. So let's move on to the next product, that is Agri Pro Tech, and that will be done by Shomana ma'am. Shomana ma'am, you ready? Hello. Okay. Okay, sir. Good morning. তো এগ্রি প্রোটেক যে প্রোডাক্টটা আছে ভেস্টিজ, সেটা শুরু করার আগে আমরা কোনো ফার্মারের সাথে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে, মানে তার সে যেখানে কাজ করে সেটা সম্পর্কে যদি আমরা তুলে ধরি, তাহলে তার প্রোডাক্টটা কিভাবে কাজে লাগছে সেটা বুঝতে তার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে। তো প্রোডাক্টের কথায় আসার আগে একটা কথা, সেটা হচ্ছে কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে ছত্রাকনাশক ইউজ করেন, বিভিন্ন সারের মতো সেটাকে ইউজ করেন। কিসের জন্য না, ধান গাছ বা গম গাছ বা বিভিন্ন রকম শস্য এগুলোকে সারের হিসাবে ব্যবহার করে, যাতে ওর গোড়ায় ছত্রাক জন্মে গাছটাকে নষ্ট না করে দিতে পারে। এবার যদি তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এই যে ছত্রাকনাশক তারা ইউজ করছে, মোটামুটি আজ থেকে যদি আমরা 10-15 বছর আগে ফিরে যাই, সেই হিসাবে দেখতে গেলে ওনারা এখন যে কোয়ান্টিটিতে ইউজ করে তার থেকে অনেক কম কোয়ান্টিটিতে ইউজ করতো। এটা হওয়ার কারণ কি? কারণ আমরা যদি এই মাটি, একটা নির্দিষ্ট জায়গার মাটিকে ধরি, সেই মাটিতে এখনো ছত্রাক আছে, আগেও ছত্রাক ছিল, কিন্তু যদি আমরা একটা কোয়ান্টিটি ধরে নিই যে একটা জায়গার মাটিতে 100টা ছত্রাক আছে, সেই ছত্রাকের মধ্যে 92টা ভালো ছত্রাক আর 2টা হচ্ছে খারাপ ছত্রাক। কিন্তু আগেকার সময়
রোগটা কম হতো, তার কারণ ভালো ছত্রাকের কোয়ান্টিটিটা বেশি ছিল, খারাপ ছত্রাকের কোয়ান্টিটিটা কম ছিল। কিন্তু কৃষক বন্ধুরা ওই খারাপ ছত্রাককে তো মারার প্রয়োজন আছে, কারণ গাছটাকে ক্ষতি করে দেবে। খারাপ ছত্রাককে মারার জন্য যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলো, তার ফলে কি হলো, ওই ছত্রাকের মধ্যে থেকে ভালো ছত্রাকগুলো মারা গেল। ভালো ছত্রাকগুলো থেকে কি করতো, খারাপদেরকে নষ্ট করে দিত। কিন্তু ভালো ছত্রাক যখন মারা গেল, তার ফলে কি হলো, পুরো জায়গাটা আস্তে আস্তে ভালো ছত্রাকগুলো শেষ হতে থাকলো, খারাপ ছত্রাকের পরিমাণ কমলো ঠিকই, কিন্তু যখন নতুন ভাবে জন্মালো ভালো ছত্রাকগুলো কম জন্মাতে শুরু করলো। যার ফলে কি হলো, পরের সিজনে যখন কোনো নতুন শাকসবজি বা কোনো ধান গম ইত্যাদি লাগানো হলো, সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, পরবর্তীকালে ওই মাটির এরিয়াতে যখন ছত্রাক জন্মাচ্ছে, ভালো ছত্রাকের পরিমাণ কম থাকছে, খারাপের পরিমাণ বেশি থাকছে। তার ফলে কি কৃষকদেরও সার প্রয়োগের পরিমাণটা আগের বারের তুলনায় বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে ওগুলোকে মারার জন্য। এর ফলে কি হচ্ছে, সেইবার যে সমস্ত ছত্রাকগুলোকে মারা যাচ্ছে, পরের বার ওগুলো সে রেজিস্ট্যান্স করে নিচ্ছে বডিতে, পরের বার সেগুলোর কোয়ান্টিটিটা মানে সারের কোয়ান্টিটিটা আরো বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। এরকম করতে করতে যদি দেখা যায় আজ থেকে 20 বছর আগে 2 ml সার প্রয়োগ করতে হতো, এখন সেটা 30 থেকে 40 ml হয়ে গেছে। এবার কৃষক বন্ধুদের যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি এভাবে কতদিন চলবে, কারণ এই যে সার প্রয়োগের পরিমাণটা আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, তার ফলে তার এক্সপেন্সটা অনেকটা বাড়ছে। শুধু সেটাই নয়, এই যে রাসায়নিক সারগুলো প্রয়োগ হচ্ছে, যেগুলো মূলের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেগুলো আমাদের হিউম্যান বডিতে প্রচুর পরিমাণে হার্মফুল, খুবই ক্ষতি করছে। এখানেই আসে আমাদের এই এগ্রি প্রোটেক্টটা। এটা কি করে, এটা প্রথমত আমাদের মানব শরীরে কোনো রকম কোনো ক্ষতি করে না, কারণ এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো রাসায়নিক পদার্থ মেশানো নেই। বেসিক্যালি এটা এক ধরনের ভালো ছত্রাক তৈরি করার প্রথম উপায়। এটা মাটিতে গুড ফাঙ্গাল গুলোকে বাড়িয়ে তোলে। এইগুলো কি করে, মাটিতে যে বাজে ছত্রাকগুলো আছে বা খারাপ ছত্রাক, ওগুলোকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে। সাথে সাথে এইগুলো একটা ফাঙ্গিসাইড হিসেবে কাজ করে। সামুদ্রিক শৈবাল আর কিছু ওটাকে কি বলবো, বনস্পতির মিক্সডে এই এগ্রি প্রোটেক্টটা তৈরি করা হয়। এটা পুরোপুরি মানে হিউম্যান বডিতে কোনো খারাপ প্রতিরোধের মধ্যে ফেলে না। সাথে সাথে এই ছত্রাক নাশক যেটা আমরা আগে ইউজ করতাম, সেইগুলো যে মাটির ক্ষতি করছে, এটা মাটিরও ক্ষতি করে না, গাছেরও বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। সাথে সাথে শুধুমাত্র ছত্রাকই নয়, অন্যান্য পেস্টদেরও গাছে আসতে দেয় না। এটার ইউজ আমরা কি করে করব, বিঘা প্রতি আমরা 200 থেকে 300 গ্রাম এই এগ্রি প্রোটেক্টটাকে নেব, এবং সাথে হিউমিক যেটা আছে সেটা মোটামুটি 7 কেজির কাছাকাছি 2 কেজির কাছাকাছি আমরা নেব। ভালো করে মিক্সড করে আমরা মাটির সাথে এমন করে মেশাবো যাতে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশে যায়। এটা হলো বীজ বপনের আগে। এবার গাছ যখন বড় হয়ে গেল, 20 থেকে 30 দিন বয়স যখন হয়ে যাবে গাছের, আমরা 15 লিটার জলের মধ্যে 5 থেকে 15 ml এই এগ্রি প্রোটেক্টটাকে ভালো করে মিশিয়ে স্প্রে করব, এবং তারও 20 থেকে 30 দিন পর আমরা আবার স্প্রে করব। তার ফলে কি হবে, বাইরের যে পেস্ট গুলো গাছের উপর এসে বাসা বাঁধে, সেইগুলো বাসা বাঁধবে না, এবং এক্সট্রা করে কোনো বাজে ছত্রাক ওর গাছে জন্মাবে না। বলতে গেলে গোড়া পচে যাওয়া বা ধসা রোগ যেগুলো হয় সেগুলো হবে না। সেই হিসাবে আমরা যদি এইভাবে কাজ করতে থাকি, তাহলে গাছগুলো ভালোভাবে বৃদ্ধি পাবে, কোনো রকম কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না, এবং পারফেক্টলি গাছটা বড় হবে। দ্যাটস ইট স্যার। সো বেসিক্যালি বাজারজাত যে কীটনাশক পদার্থগুলো আমরা ইউজ করে থাকি, তার পরিবর্তে আমাদের কাছে ভেস্টিজ তুলে ধরেছে এগ্রি প্রোটেক্ট, which is totally organic, right? Okay, thank you so much, Sumana ma'am. It was great. So let's move on to the next product. That was Agri Humic. And so Rituraj sir, ready? Yes sir, ready. Can you hear me? Yes. শুনতে পাচ্ছ আমার আওয়াজ क्लियर? Clear. ओके, सो এবার আমরা আমাদের चलो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक की बात करते हैं, बट एग्री ह्यूमिक से पहले कुछ बातें मैं ये बताना चाहूंगा दैट बेसिकली क्या होता है। आप देखोगे खेतों में जो किसान जो होते हैं
वो ज्यादातर डीएपी यूरिया बोल के एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो कि खेतों में डाल डाल के क्रॉप के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, फसल को इम्प्रूव करता है। तो किसान क्या करते हैं, ये डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। और जब ये यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, फसल के अंदर जो है पॉइजन बनने लगता है और फसल आस्ते आस्ते बर्बाद होने लगती है। और मिट्टी भी, जो फसल की जो मिट्टी है वो भी बर्बाद होने लगती है। ठीक है। अब एग्री ह्यूमिक क्या है? एग्री ह्यूमिक एक ऐसा लिक्विड प्रोडक्ट है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है जब आप देखते होंगे जंगल में, जब जंगलों में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं और पत्ते झड़ जाने के बाद जब वो सूख जाते हैं, वो जो सूखे हुए पत्ते हैं, उन सूखे हुए पत्तों से ही वो ह्यूमस बनता है और वो ह्यूमस से ही वो ह्यूमिक एसिड बनता है। ठीक है। तो एग्री ह्यूमिक क्या करता है? एग्री ह्यूमिक एक ऐसा बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट क्या है? बायोस्टिमुलेंट एक फर्टिलाइजर है जो कि पौधे के और क्रॉप के ग्रोथ को और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लांट्स में, मिट्टी में, जैसे कि इसको प्लांट्स और मिट्टी में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब पौधे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो ये बायोस्टिमुलेंट उन सब पौधों में जाके वो ग्रोइंग स्टेज को होल्ड करता है। और जैसा कि आप देखते होंगे कि जब वेदर कंडीशंस खराब होते हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या होता है कि फसल झड़ जाती है, फसल खराब हो जाती है। तो एग्री ह्यूमिक क्या करता है, ये जो बायोस्टिमुलेंट है, इसका काम ये है कि ये उस फसल को हर वेदर कंडीशंस में एलिजिबल रखने के लिए सहायता करता है, मतलब ताकि वो हर वेदर कंडीशंस में स्टेबल रहे। ठीक है। इस नेचुरल प्रोसेस से क्या होता है, नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल आते हैं, नए फ्रूट्स आते हैं। तो इस बायोस्टिमुलेंट का ये यूज है। बेसिकली बायोस्टिमुलेंट जो है वो पौधे के हेल्थ को मजबूत करता है और वेदर चेंज में भी बहुत ज्यादा मतलब ये फायदाकारी है। और ये बायोस्टिमुलेंट एग्री ह्यूमिक में पाया जाता है। अब एग्री ह्यूमिक में डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो 25 to 30% कम रहता है। ठीक है। जैसा कि अगर मैं बोलूं, जो नॉर्मल यूरिया फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, उसमें जो है फर्टिलाइजर की मात्रा, डीएपी यूरिया की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है कि वो एक टाइम के बाद क्रॉप्स को पॉइजनस कर देते हैं, अगर वो रेगुलर चीजों में, अगर रेगुलर वो यूज किए जाए तो। ठीक है। तो एग्री ह्यूमिक में क्या होता है, एग्री ह्यूमिक में डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो 25 से 30% कम रहता है। और कम रहने के बावजूद भी हर साल क्रॉप्स में 5 से 20% तक की ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ग्रोथ रहती है। उसके बाद एग्री ह्यूमिक बेसिकली क्या करता है, ये मिट्टी को मुलायम बनाता है, मिट्टी भुरभुरी बनती है इससे, जिसमें इससे क्या होता है, जो कि अंदर में रूट्स हैं उनको सांस लेने में, एयर पास होता है तो वो लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और इससे जो है फसल भी मजबूत होती है और हरे पत्ते भी अच्छे से खिलते हैं। ठीक है। अब इसका यूसेज क्या है? एग्री ह्यूमिक बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, अगर कोई 1 एकड़ की जमीन होती है, 1 एकड़ की जमीन में कम से कम वो लोग 100 kg डीएपी यूरिया यूज करते हैं। ठीक है। अब वो 1 एकड़ की जमीन में 100 kg डीएपी यूरिया अगर यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद खेत को उस चीज की आदत लग जाती है। ठीक है। तो चीज यह, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो हो पूरा चेंज करके इसको एग्री ह्यूमिक में शिफ्ट कर लो, लेकिन अब से ऐसा करेंगे हमारे किसान भाई कि 100 kg डीएपी यूरिया जो यूज करते हैं उसकी जगह वो लोग 75 kg डीएपी यूरिया यूज करेंगे, उसके साथ 250 ml एग्री ह्यूमिक मिक्स करेंगे और 150 ml एग्री 82 मिक्स करेंगे और फिर जाके उसको वो लोग उस क्रॉप पे छिड़केंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, आपके रूट्स भी बड़े होंगे और रूट्स की पिगमेंटेशन भी काफी अच्छे से होगी। उसके साथ अब मैं अगर बात करूं बीज के उपचार के लिए और जड़ के उपचार के लिए, जड़ मतलब रूट्स और बीज का उपचार के लिए, बीज बीज बोते हैं जो किसान लोग, वो लोग क्या करेंगे, 5 ml एग्री ह्यूमिक यूज करेंगे 1 किलो बीज में मिला के, पर 1 किलो 5 ml पर केजी, 5 ml पर केजी बीज में एग्री ह्यूमिक मिलाएंगे, उसको सुखाकर, उसको सुखाने के बाद उसको खेत में बोएंगे, तब जाके
वो उस बीज के उपचार के लिए भी लाभदायक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं रूट ट्रीटमेंट के लिए, रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 ml पर लीटर पानी में एग्री ह्यूमिक मिलाना है और इससे घोल लेना है, 10 से 15 मिनट डुबा के रखना है, और पौधे के इससे क्या होंगे, जड़ मजबूत बनेंगे। 10 से 15 मिनट डुबाने के बाद फिर जाके उसको हम लोग क्रॉप्स में बोएंगे, तो इससे क्या होगा, पौधे के जड़ मजबूत बनेंगे। तो बेसिकली एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट के एक क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टेज एंड सर्वाइवल स्टेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी लाभदायक है। ठीक है, लेकिन रूट ट्रीटमेंट और बीज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एग्री 82 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीप दिस इन माइंड, रूट ट्रीटमेंट और बीज ट्रीटमेंट के लिए एग्री 82 का यूज हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्री ह्यूमिक का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे फल, कपास, फूल, सब्जी, इन सब चीजों में हम लोग एग्री ह्यूमिक का इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बेस्ट बिफोर 60 मंथ्स ऑफ यूज, मतलब 5 साल तक ये बेस्ट है यूज करने के लिए। तो हमारे किसान भाई अगर इसको यूज करें तो देयर विल बी अ वेरी गुड ग्रोथ इन देयर क्रॉप्स एंड एवरीथिंग। So that's it from AgriHumic. Thank you, sir. Yeah. So very much important product, AgriHumic, right? And another important product, AgriHumic granules. और ये बताएंगे हमारे साथ ईशान सर है। सो ईशान सर, रेडी? Yes, my voice audible? सबको आ रही है मेरी आवाज? क्लियर? ओके, फैंटास्टिक। सो एग्री ह्यूमिक के बारे में आप लोगों ने सुन लिया, इसके बड़े भाई के बारे में सुन लो, एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स के बारे में। ठीक है, एज पर ग्रैन्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, एक मोटा दाना जैसा होता है। ठीक है, जैसे ग्रेन्स या फिर ग्रैन्यूल्स वर्ड सिमिलर लग रहे हैं, तो वैसे ही है ये भी। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एमर्ज हो रही है इंडिया जैसे कंट्रीज में, बिकॉज एग्रीकल्चर का यहाँ पे 75% तक का बिजनेस जनरेट होता है थ्रू एग्रीकल्चर। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ज्यादा रेवेन्यू और कैश फ्लोज इसके द्वारा आ रहा होता है। तो अगर एग्रीकल्चर अगर 1% भी अगर एक दिन में ड्रॉप हो गया, तो सोच सकते हो आप लोग कि हमारे खाने के तो लाले पड़ेंगे ही, साथ ही साथ फाइनेंस के सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो कमिंग टू दिस पार्ट, ग्रैन्यूल्स का काम क्या है अगर मैं बताऊं, तो ये सबसे पहला बात तो इसमें आपको 1.5% ह्यूमिक सब्सटेंस होता है। अब ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होता है, ह्यूमिक 3 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला है ह्यूमिक एसिड, दूसरा है फुल्विक एसिड, और तीसरा पार्ट हो जाता है इसका ह्यूमिन्स। ये 3 चीज को मिला के ह्यूमिक सब्सटेंस बनता है, जो इसमें 1.5% तक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आपको ये रिन्यूएबल एग्री बायोमास जो है उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये क्या करता है जितने भी आपका एक्सेलरेशन का जो पार्ट होता है, जो आपका प्लांट का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग प्लांट को क्या देते हैं, कोई बाथरूम कर रहा होता है सोचता है कि वो उग जाएगा, कोई पानी देता है ना, तो लिक्विड कोई ना कोई तो दे रहा है, चाहे वो बाथरूम कर रहा हो चाहे वो पानी दे रहा हो। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो जा रहे हैं उसके अंदर वो ठीक तरीके से एब्जॉर्ब होए, इसीलिए काम होता है ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस का। ओके, नाउ मूविंग टू द सॉइल टेक्सचर वाला पार्ट, जो डेंसिटी बढ़ाता है सॉइल का। अगर सॉइल की डेंसिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो रूट्स को पकड़ के नहीं रखेगा, और रूट्स पकड़ाएगा नहीं तो अंदर तक पानी और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे। तो सॉइल की टेक्सचर को बढ़ाना, सॉइल के पोरोसिटी को बढ़ाना, और उसके साथ साथ वाटर रिटेंशन के पार्ट को भी एग्री ग्रैन्यूल्स संभाल रहा होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट अगर मैं जाऊं तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ठीक तरीके तक जड़ों तक जाने का काम जो करता है वो करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसका बढ़ावा या फिर इसका भी ग्रोथ कौन देखता है, एग्री ग्रैन्यूल्स देख रहा होता है। नेक्स्ट, जो हमारा रूट्स होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, इसमें आपका एनायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे केमिस्ट्री कहाँ से घुसा दी है। जी हाँ, यहाँ पे केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बताऊं तो कैटायन एनायन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो प्लांट के जो रूट्स है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहे होते हैं। आप लोग देखते हो ना, कंगी जब बाल में छूते हो तो पट से चिपक जाता है। कई बार तो होता है किसी का तो सर ही धड़ से अलग हो जाता है बाल आ जाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो चीज वही है, यहाँ भी कुछ उसका काम होता है। तो रूट्स में जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर होता है वो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करती है, चीजों को अट्रैक्ट करती है, और इसके द्वारा लीचिंग जैसी बीमारी ना हो और पौधा सड़ ना जाए, वहां पे काम आता है हमारा एग्री ग्रैन्यूल्स, और इसको बढ़ाने में मदद करता है एग्री ग्रैन्यूल्स। ओके, नेक्स्ट, एग्री ग्रैन्यूल्स का क्या यूजेस है और बेनिफिट्स है। अगर और बताऊं तो ये अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस को मैनेज करता है। अबायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे पेट की समस्या है, ठीक है भैया, आप लोग बर्गर खा लोगे चाप के तो पेट में तो समस्या होगी, ठीक है, बाथरूम में तो जाके आपको बैठना पड़ेगा, अंदर का सुनामी निकालना होगा बाहर, ठीक है, कई कई बार तो पेट जाम भी हो जाएगा। तो अंदर का स्ट्रेस तो आप लोग मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कई कई बार बाहर का स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। मान लो जैसे कि बाहर में आपको स्ट्रेस पड़ रहा हो तो आप लोग गाना सुन के मैनेज कर सकते हो, या फिर क्रिकेट खेल के या फुटबॉल खेल के, जिस भी तरीके की एक्टिविटी के द्वारा उसको मैनेज किया जा सकता है। सिमिलरली गोज टू द प्लांट साइड एज वेल। इसके भी दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक, और इसमें काफी तरह के स्ट्रेसेस हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट का चेंज होना, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो सैलिनिटी का स्ट्रेस होना, उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो इंसेक्ट्स, तरह तरह के बिच्छू, ठीक है, बिच्छू जानवर होते हैं, तो ये पौधे को खा जाते हैं, खा जाएंगे तो शरीर जैसे इंसान को कोई खा जाएगा शरीर सड़ जाएगा, सिमिलरली प्लांट को कोई खा जाएगा तो उसका प्लांट का भी शरीर सड़ जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे भी दो पैरों वाले बेवकूफ इंसान होते हैं जो प्लांट को काटने में भी तुल आते हैं, तो उनसे भी अगर देखा जाए तो प्लांट को बर्बादी होती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए तो एग्री ग्रैन्यूल्स का और क्या काम है। एग्री ग्रैन्यूल्स प्लांट के विगर और ग्रोथ में बहुत मदद करता है, ठीक है, एक प्लांट को सही स्ट्रक्चर देना और उसके ग्रोथ को बढ़ावा देना, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, ये हर तरह के क्रॉप्स में यूज किया जा सकता है, ईच एंड एवरी क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब आप लोगों को पता होगा दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, है ना, रबी और खरीफ क्रॉप्स, तो ये दोनों तरह के क्रॉप्स को यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, जो नर्सरी होता है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज करना है इसको। जैसे नर्सरी है, नर्सरी में आपको क्या करना है, बस 2 kg छिड़क देना है। अगर मैं नर्सरी की बात करूं तो 2 kg पर एकड़ में आपको छिड़कना है ये। अब इसको कैसे यूज करना है, या तो आप इसको अकेले भी छिड़क सकते हो, या तो फिर आप इसको कोई फर्टिलाइजर्स के साथ भी छिड़क सकते हो, या फिर आप इसको फार्म यार्ड मैन्योर के साथ भी मिला के छिड़क सकते हो। अब ये फार्म यार्ड मैन्योर क्या है, पता है आप लोगों को फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है? इसको हम लोग देसी भाषा में गोबर की खाद कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसका भी सुगंध लेना हो तो आप लोगों को उधर जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, जहाँ पे घने घने पेड़ है, घने घने पेड़ों के तरफ अगर देखा जाए तो 100 से 150 ग्राम आपको छिड़कना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जहाँ पे फील्ड क्रॉप्स है वहां पे आपको 5 से 8 kg पर एकड़ जमीन पे आपको छिड़कना होगा, या फिर इसको आप प्री प्लांटेशन प्रोसेस में छिड़क सकते हो, जब प्री प्लांट लग रहा हो तब कर दो, या फिर पोस्ट प्लांटेशन में भी आप इसको कर छिड़क सकते हो, या फिर अगर मैं बताऊं तो 25 से 30 दिन सोइंग के बाद आप उसको छिड़क सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट एग्री ग्रैन्यूल्स। ओके, फैंटास्टिक। सो आई गेस सब लोगों का कवर हो चुका है। लास्ट एक प्रोडक्ट बचा हुआ है, एक्वाजेल, राइट। बहुत ही एकदम सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन इसके यूसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्लाइड तो पिछले वाले में नहीं है, सो आई हैव मेड अ स्लाइड, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, आई गेस अब सब लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड, राइट, और आवाज भी मेरी सुनाई दे रही है। ओके, फैंटास्टिक।
सो अभी जो प्रोडक्ट के बारे में बोलने वाला हूँ वो है एग्री एक्वा जेल। बहुत ही रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है और बहुत ही इफेक्टिव। जितने भी प्रोडक्ट्स अभी बताए गए हैं सारे के सारे इफेक्टिव है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब प्रोडक्ट्स में से मैं बोलूंगा कि सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है, जैसे कि ईशान सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, भारतवर्ष में एक औसतन आदमी जो इनकम करता है, उसकी जो रोजी रोटी आती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर, राइट। तो एग्रीकल्चर को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, वो प्रॉब्लम्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। वाटर क्राइसिस, राइट, वाटर क्राइसिस से जूझते हैं। या तो ज्यादा पानी की प्रॉब्लम होती है या तो फिर कम पानी की प्रॉब्लम होती है। और इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब पानी को सही तरीके से क्रॉप्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, लैंड तक या तो फिर क्रॉप तक जो प्रोसेस होता है उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो पोर इरिगेशन फैसिलिटी, वो फैसिलिटी सही तरीके से जब नहीं बन पाती तब प्रॉब्लम आती है, फार्मर को प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जो जिस तरीके के न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं सॉइल के ऊपर और क्रॉप के ऊपर, वो जब वहां से हट जाते हैं या फिर सही तरीके से वहां पे पनप नहीं पाते हैं, स्टे नहीं कर पाते हैं, तब इसको बोलते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये अगर होगा तो क्रॉप, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्रॉप जिंदा कैसे रहेगा, ये प्रॉब्लम होता है। और एक होता है सॉइल इरोजन, राइट। मिट्टी टूट जाती है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है, कहीं पे लैंडस्लाइड होता है, कहीं पे बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मिट्टी काटना जिसको बोलते हैं, सॉइल जो होता है वो टूट जाता है, एक जगह से दूसरी जगह से हिल जाता है, एक जगह पे सटीक होके बैठा नहीं रहता, इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो फार्मर फेस करते हैं, और इसकी वजह से आप लोगों को आए दिन बहुत सारे खबर मिलती होंगी, ठीक है। ज्यादा अगर पानी का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वाटर क्राइसिस जिसको बोलते हैं, तो पूरे साल फार्मर कंफ्यूज रहता है कि भाई एग्जैक्टली कौन से क्रॉप को लेके हम एग्रीकल्चर करें। कंफ्यूजन में ही पूरा साल बिता देते हैं, राइट। उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद भी ठीक तरीके से फार्मर तक पैसा पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स जो है सुसाइड कर लेते हैं, और भी बहुत सारी बुरी बुरी खबरें आती है, जिसकी वजह से बहुत दिनों से फार्मर लोगों का वो आंदोलन भी चल रहा है, राइट। तो इसको सही तरीके से एक सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोल्यूशन क्या है? अब वाटर क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाटर क्राइसिस दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है लैक ऑफ वाटर, एक होता है एक्सेस वाटर। लैक ऑफ वाटर होने का कारण क्या है? लेस रेन, बारिश ही नहीं हुआ, सूखा पड़ा हुआ एकदम पूरा। अगर कहीं पे बारिश नहीं हुई, लगान वाला सीन हो गया, तो वहां पे गाना गा गा के फिर बारिश करना होगा। तो ये फिल्मों में पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेस ग्राउंड वाटर, राइट। जमीन जब वाटर को होल्ड नहीं कर पाता तो क्या होता है? वाटर निकल जाता है, राइट। ये एक प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से पानी की कटौती हो जाती है। ड्राउट, सूखा पड़ना, इसको हम बांग्ला में बोला है खड़ा, राइट। उसके बाद लो वाटर लेवल, ठीक है। जमीन का जो वाटर लेवल है वो जब नीचे चला जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। ऊपर से जो एक्सेस वाटर है वो किस वजह से आती है? एक्सेस रेन, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जैसे कि मौसिनराम चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सालों साल वहां पे बारिश ही होती रहती है, राइट। उसके बाद फ्लड्स, ठीक है, असम में तो शायद साल में 2-3 बार फ्लड आ ही जाती है, राइट। उसके बाद हाई वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल जब बढ़ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद लीचिंग न्यूट्रिएंट्स, ये क्यों होता है? लीचिंग तभी होता है, सपोज मान के चलिए कि जो वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, तो जब ज्यादा पानी हो जाएगा फील्ड के ऊपर तो क्या होगा? पानी को वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तो पानी बह जाएगा। तो उस पानी के साथ साथ जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी धुल के बह जाते हैं, तो क्रॉप से उनका डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो ये कारण है। उसके बाद सॉइल इरोजन, ये क्यों होता है? बहुत सारे रीजन है, जैसे कि ईशान सर थोड़ी देर पहले बताया कि 2 पैरों का वो जीव है जो पेड़ काटने में लगा हुआ है। तो हम सबको पता है कि पेड़ जो है उसकी जो जड़ें हैं, ठीक है, वो मिट्टी को पकड़े रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दिन ब दिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं, तो सॉइल इरोजन होना बनता है, राइट। साथ ही साथ
क्या होता है, दो तरीके से यहाँ पे सॉइल इरोशन होता है, एक होता है ड्यू टू विंड, एक होता है ड्यू टू वाटर, राइट। फील्ड जो होता है, खेत जो होते हैं वो खुला हुआ रहता है, तो वहां पे क्या होता है, हवाएं जो है वो अच्छी तरीके से और बहुत ही तेज गति से बहती रहती है। तो इससे होता क्या है, ज्यादा तेज गति से अगर जब हवा बहती है तो क्या होता है, मिट्टी को उठा के एक जगह से दूसरी ओर लेके चली जाती है। वो हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन कंटिन्यूसली जब वो प्रोसेस हो जाता है तब बहुत टाइम के बाद ये चीज हमारे नोटिस में आती है। साथ ही साथ वाटर की वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। एक जगह पे अगर ज्यादा से ज्यादा बारिश हो गया, ज्यादा से ज्यादा पानी गिर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि वहां से मिट्टी जो है वो हट जाएगा, राइट। तो ये जो तीन मेजर प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल इरोजन, इन तीन वजहों से, मेजर वजहों से क्या होता है, हमारे फार्मर लोग जो है वो अनहैप्पी रहते हैं, राइट। अब उनको हैप्पी बनाने का सोल्यूशन क्या है, वेस्टिज हमारे सामने लाके पकड़ी है, एग्री एक्वाजेल, राइट। एज द नेम सजेस्ट, एक्वाजेल, एक्वा का मतलब क्या होता है, समथिंग इज रिलेटेड टू वाटर, राइट। अब ये क्या करेगा, सबसे पहला, ये जो है खेतों में जितना भी पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, एक फसल को उगाने के लिए जितना भी पानी जरूरी होता है, जो भी पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए चावल की खेती होगी, अब चावल की खेती के लिए 100 लीटर पानी की जरूरत है, तो ये एक्वा जल जब हम यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जहां पे 100 लीटर पानी की जरूरत हो रही थी, वहां पे क्या होगा, वहां पे बस 50 लीटर पानी अगर यूज करोगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये आपका 50% वाटर जो है वो बचा देगा। अब वाटर एक ऐसी चीज है, वाटर को आप ऐसे बाल्टी से तो ला के डाल नहीं सकते, वाटर सप्लाई के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है, मशीन वगैरह बहुत सारे कुछ लगे हुए रहते हैं, तो उससे वाटर की सप्लाई होती है, राइट। तो इतना सारा वाटर सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अगर वाटर यहाँ पे अगर हम कम मात्रा में यूज करें और कम मात्रा में यूज करके अगर डिजायर्ड रिजल्ट अगर प्रोड्यूस कर सके, एक तो पानी का खर्चा बच रहा है, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत घट रहा है, साथ ही साथ सेव्स अप टू 40% फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, तो ज्यादा पानी देने से होता क्या है, वो फर्टिलाइजर जो है वो धुल के निकल जाता है। कभी कभार ऐसा बहुत बार होता है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, ज्यादा पानी फार्मर जो है वो दे देता है, उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो धुल के एकदम बाहर निकल जाते हैं। तो जो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, मतलब हमारे फार्मर भाई लोग, जो लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जितने मात्रा में फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, एग्री एक्वाजेल मिला के देने के बाद 40% फर्टिलाइजर जो है वो आपका सेव हो जाएगा, वो धुल के निकलेगा नहीं, राइट। क्योंकि ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब एग्री एक्वाजेल मेन फंक्शन क्या है, जो तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है, वाटर क्राइसिस, लीचिंग एंड सॉइल इरोजन, इन तीन चीजों को, इन तीन चीजों से फार्मर को बचाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, वाटर क्राइसिस से ये कैसे बचाए, इसका मेन जो मैकेनिज्म है, जेल का मतलब क्या है, कॉलोइड, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कॉलोइड फॉर्म करता है, राइट। तो जेल आप लोग देखना कि एक सेमी वाटर चीज है, ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करता है जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है, राइट। जब भी आप इसको जब आप फील्ड रेडी करोगे, फील्ड रेडी करने के साथ साथ फर्टिलाइजर या जो भी है उसके साथ जब आप एग्री एक्वाजेल मिला के मिक्स करके जब डालोगे, तो वो क्या करेगा, पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे आप मशीन लगा के पानी डाल रहे हो, जैसे भी डालो, वो क्या करेगा, तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को रिलीज करता है बहुत धीरे धीरे, एब्जॉर्ब करके उसको होल्ड करके रख लेता है और वो धीरे धीरे पानी को रिलीज करता है, राइट। इससे होता क्या है कि क्रॉप को जब भी ग्रोथ के लिए जितना पानी चाहिए होता है, उसी हिसाब से एक्वाजेल जो है, ये प्रोडक्ट जो है, वो पानी को रिलीज करता है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि वाटर के लिए यहाँ पे आप एक जैविक एआई सिस्टम यहाँ पे दे रहे हो, जो कि अपने हिसाब से जिस तरीके का भी क्रॉप होगा, उसको जब भी पानी की जरूरत होगी, जितना भी पानी की जरूरत होगी, वो पहले से वो होल्ड करके रखेगा और धीरे धीरे एज पर रिक्वायरमेंट उसको वो पानी रिलीज करता रहेगा। दैट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्वाजेल, राइट। तो ये जब सूखा पड़ेगा, सूखे से कैसे बचाएगा, लेस रेनफॉल, जब बारिश नहीं हुआ,
ठीक है, एकदम कम बारिश हुआ कोई दिक्कत नहीं है, वाटर को ये होल्ड करके रखेगा, राइट। लो वाटर लेवल, अगर वाटर लेवल डाउन भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी वाटर को होल्ड करके रख रहा है। उसके बाद ड्राउट लाइक कंडीशन, अगर सूखा पड़ गया, খরা বন্যা মানে বন্যা তো নয়, খরা এরকম টাইপের যদি কোনো কন্ডিশন হয় সেখানেও কি করবে, কোনো প্রবলেম নেই, জলকে হোল্ড করে রেখে দেবে, राइट। एक्सेसिव रेनफॉल में क्या होगा, एक्सेसिव रेनफॉल में जो प्रॉब्लम होती है वाटर लॉगिंग, ये वाटर को लॉक कर देता है, राइट। जितना पानी जमीन को होल्ड करके रखना होता है वो एक जेल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अगर एक्सेसिव पानी उसके ऊपर अगर डालोगे भी आप, तब भी वो ज्यादा पानी खींचेगा, राइट। तो एक्सेसिव पानी से इस तरीके से ये मैकेनिज्म हमें बचाता है। उसके बाद एग्री एक्वा जेल फॉर लीचिंग, लीचिंग से कैसे बचाएगा, पानी के साथ साथ जो हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, राइट, ये एक्वा जेल क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करके रख लेता है एज अ रिजर्वियर, राइट। तो जब कभी जितना भी जरूरी होता है, जिस क्रॉप के लिए जितना न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है, उसी हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स को भी धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इससे होगा क्या, क्रॉप के ऊपर, राइट, क्रॉप के ऊपर न्यूट्रिएंट्स की जो लेयर होती है, ठीक है, वो एक्सेसिव पानी आ जाए या फिर विंड आ जाए, जोरों शोरों से हवा चले, जोरों शोरों से पानी चले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये एक्वा जेल उसको होल्ड करके रख रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मिला के छोड़ दो, ये अपना काम ये खुद करता रहेगा, राइट। सॉइल इरोशन से कैसे बचाएगा, मिट्टी को काटने से बचाता है, क्योंकि जैसे कि पानी होल्ड करके रखता है, अब जब मिट्टी जब ज्यादा सूख जाती है, ठीक है, मिट्टी जब ज्यादा सूख जाती है तो धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये क्या करेगा, एक्वा जेल उस मिट्टी को टूटने नहीं देगा, क्योंकि मिट्टी में ये सॉगीनेस लाएगा, राइट। इसका मतलब मिट्टी को भिगा के रखेगा, तो भीगा हुआ मिट्टी से क्या फायदा मिलता है, इजीली टूटेगा नहीं, इरोजन होगा नहीं बहुत इजीली, राइट। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब इसका बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको यहाँ पे पानी कम लग रहा है। तो इन 3 तरीकों से ये एक्वा जेल हमें इन प्रॉब्लम से मुक्ति देता है। तो बेसिकली एक्वा जेल का काम क्या है, मैंने बताया था कि बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। सस्टेनेबल वाटर यूज, जितना पानी यूज करना होता है उतना ही पानी यूज करेगा। फास्ट जर्मिनेशन, राइट, जल्दी जल्दी फसल को बढ़ने में मदद करेगा। रेस्ट्रिक्ट्स एल्गी ग्रोथ, राइट, अनवांटेड जो एल्गीज होते हैं, राइट, जिसको बंगाली में आगाछा बोलते हैं, उन सारी चीजों को होने नहीं देगा। एनहांस डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स को डिलीवरी कराएगा, क्योंकि हमें क्या पता है, हमारे शरीर में आप जितना भी सप्लीमेंट डाल लो, ठीक है, जितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, वाटर अगर आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं रहेगा तो आपके न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, अपने असली जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली एक्वा जेल क्या करेगा, एक्वा जेल पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सही जगह पे पहुंचने में मदद भी करते हैं, राइट। साथ ही साथ रेमिडिएशन एंड रिड्यूस रन ऑफ, राइट, फसल खराब होने से भी ये बचाएगा। यूज कैसे करना है, एग्री पिक्चर में आप देख सकते हो, एग्री एक्वा जेल लेना है, लेने के बाद बेसल डोज फर्टिलाइजर, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर फार्मर यूज कर रहा है वो फर्टिलाइजर वो यूज करेगा, या तो फिर अगर वेस्टेज का कोई प्रोडक्ट अगर वो यूज कर रहा है तो उसको भी यूज कर सकता है, उसको वो मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद जब खेत को या फिर जब फील्ड को वो तैयार करेगा, उसमें उसको वो डाल देना है। डालने के बाद पानी डालना है, पानी डालने के बाद निश्चित होकर बैठ जाना है। एक्वा जेल अपने आप अपना काम करता रहेगा, राइट। ये अप्लाई कैसे करना है, फील्ड एप्लीकेशन होगा पर एकड़ जमीन में 1 से 2 kg, ठीक है, जितना एरिया लेके कल्टीवेशन हो रहा है एकड़ के हिसाब से 1 से 2 kg उसमें अप्लाई करना पड़ता है। और अगर स्पेसिफिक प्लांट और ट्री के बारे में अगर हम बोले तो 40 से 80 ग्राम पर प्लांट, जिस तरीके का भाई प्लांट हो, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। ब्रिंजल के लिए थोड़ा अलग होगा, आलू के लिए अलग होगा, प्याज के लिए अलग होगा, उस हिसाब से 40 to 80 में ये रेंज करता है। 40 to 80 ग्राम पर प्लांट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम खरीद कहाँ से सकते हैं, कोई भी डीएलसीपी, कोई भी मेन ऑफिस में आपको मिल जाएगा। 1 kg का पैकेट आता है जिसका एमआरपी होता है 1850, वो आपको मिल जाएगा 1650 में। विद रिस्पेक्ट टू दैट हमें मिलता है 55 पीवी। इसका मतलब अगर किसी फार्मर दोस्त को हम 2 एक्वा जेल दे तो हमारा 100 पीवी का कंसिस्टेंसी आराम से बन जाता है। कोई झिक झिक पिक पिक है ही नहीं कि भाई 10 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, 20 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, कोई झंझट है ही नहीं। 2 kg एक्वा जेल फार्मर को दे दो, आपका 100 पीवी का कंसिस्टेंसी आराम से हो जाता है।
right? So I guess I have made myself clear with Vestige Aqua Gel.